افتتاح پہ آج میٹرو الیکٹرک بائک موٹر سائیکل کا افتتاح ہے بوسر روڈ پہ ماشاءاللہ الیکٹرانکس کے سامنے. تو بھائی ملک اظہر سندیلہ صاحب اس کے سی ای او ہے الجنت موٹر والے. تو موٹر الیکٹرک بائک جب آپ کو پیٹرول سے آپ کی جان چھڑوا دے, ایک چارج میں کوئی 200 کلومیٹر تک یہ چلتی ہے. تو آج اس کا افتتاح ہے. حاجی اصغر صاحب سی ای او, نعمت فوڈز, بٹ صاحب میٹرو الیکٹرک بائک کے آنر, ملک اظہر سندیلہ صاحب, ملک حمزہ, سب دوست بھائی یہاں پہ اکٹھے ہیں. ملک شیخ عمران, بولو پان والے, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو جیسے ہی تقریب جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ الیکٹرک موٹر بائک میٹرو کا افتتاح یہاں ہو چکا ہے. تو آپ جو ہے نا وہ تقریب انجوائے کریں. نہیں کرنا ہے. اور جس طرح ہم نے کہا بات صاحب نے ویسے ہی میں نے چنگا بولا تھا کہ میں دنیا کی بیسٹ پروڈکٹس کے پاس لے کے آیا ہوں. اہل ملتان کے پاس یہ کیسے ہے, اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ٹو ویلر کے اندر الیکٹرک میں سب سے بیسٹ برانڈ کون سے, تو وہ دنیا کے 3 برانڈ تھے جن کی ٹیکنالوجی بھی سب سے جدید تھی اور جن کی پروڈکشن بھی سب سے اچھی تھی. ہم نے ان 3 برانڈز کے جو سب سے بیسٹ ماڈل تھے وہ ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کر کے بک کر لیے. دادا ایک کمپنی کے پاس اگر 30 ماڈل ہیں تو سارے کام کے ماڈل نہیں ہوتے, یا پاکستانی ماحول کے مطابق یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قیمت بھی نہ ہو. ان کے پاس تو وہ ماڈل بھی ہیں جو 15-15 لاکھ کے ہیں. اب وہ پاکستانی لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا, پرفارمنس بھی بیسٹ ہو, اور لوگوں کو گاڑی خریدنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ ہم کسی یورپین ٹیکنالوجی کی چیز کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ ماڈل جو پاکستان کے کسٹمر کسی حد تک افورڈ کر سکیں اور اس ملک کے ٹمپریچر کے مطابق, زیادہ اس کے اندر ٹمپریچر کا بڑا تعلق ہے. کچھ بیٹری ٹیکنالوجی ایسی ہے جو ٹھنڈے ملکوں میں کامیاب ہے اور گرم ملکوں میں کامیاب نہیں ہوتی, وہ آگ پکڑ جاتی ہے. ہم نے اس کا بھی خیال رکھا, دیکھا کہ یہاں لوگوں کا وزن کتنا ہے. کچھ ملکوں کے اندر ایک بندے کا اپنا وزن جو ہے وہ 75 کلو سے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے, یہاں پہ 100 کلو سے شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. ہم نے پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ لوگ یہاں پہ ایک بیٹھنے کا کلچر کم ہے, 2 لوگ 3 بھی بیٹھتے ہیں. تو ہم نے اس حساب سے موٹر کی طاقت, سپیڈ اور چیزوں کو دیکھا, اور پھر ہم نے جو بیسٹ ماڈل تھے ان کمپنیوں کے وہ اٹھا لیے, ان سے ایگریمنٹ کیا. اس کے اندر پھر ہم نے امپروومنٹ بھی کروائی, یہ نہیں کیا کہ جو انہوں نے دے دیا اٹھا لیا. تو یہ ہم ابتدائی طور پہ ابھی تک 4 ماڈل پاکستان میں انٹروڈیوس کروا چکے ہیں. ایک جو ہے وہ بچوں کا ہے, اور 3 جو ہے وہ مرد اور خواتین سب کے لیے یکساں ہے. ابھی اس کے بعد ہم اور بھی بہت سارے ویریئنٹ اگلے مہینے یا جنوری تک لے کے آ رہے ہیں, اور ان کے اندر بس میں ایک ہنٹ دیتا جاؤں کہ ہمارا جرمنی کی 2 کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, جس میں ہم اس کے اندر جتنی کریٹیکل مشینری ہے, موٹر ہے, کنٹرولر ہے, اس کا ریگولیٹر ہے, وہ ہم جرمن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ پاکستان کی عوام کو ہم بیسٹ پروڈکٹ دیں. ہمارا مشن ہے کل کو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی, کوئی جاپانی بھی پاکستان میں الیکٹرک لے کے آ جائے, وہ کوالٹی کے اندر اور مارکیٹنگ کے اندر ہمارا مقابلہ نہ کر سکے انشاءاللہ تعالی. اب بس اس میں الیکٹرک کے حوالے سے تو جتنی مرضی باتیں کر کے ختم نہیں ہوتی. میں 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اویئرنیس کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم پاکستان میں صرف اسمبل کر رہے ہیں. یہ پینٹ بھی باہر سے ہو کے آتی ہے, مکمل کٹ آتی ہے, ہم صرف اس کو نٹ بولٹ کر کے جوڑتے ہیں اور ڈسپیچ کرتے ہیں. یہ سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ڈیلروں کے پاس 60 دن کی ایڈوانس بکنگ پڑی ہے, 60 دن کی,
اور ہم بھی پورا زور لگا رہے ہیں, جتنی ہم انویسٹمنٹ ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم مال ہمارے پاس پاکستان میں پہنچے. لیکن بہرحال یہ ہمیں تھوڑی دقت آ رہی ہے جس کو ہم اگلے 1-1.5 مہینے میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ خلاف توقع ہے, ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ایک شو روم سے مہینے کی 50 گاڑی بکے گی, اب اس شو روم سے 100 بک رہی ہے. جہاں ہم سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹی ایک شہر ہے, یہاں پہ 30-35 بکیں گی, وہاں سے 60 بک رہی ہیں. اور جب ہم اس کو 60 کو پورا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 100 دے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کے اندر ایک کلچر پیدا ہوا ہے, پہلے ایک جھجک تھی, تو ان ایکسپیکٹڈ اس کی جو ہے وہ آئی ہے. اور ہم بھی تھوڑے احتیاط میں تھے کیونکہ ہماری پروڈکٹس کی قیمت جو ہے وہ اپنے کمپیٹیٹر جو ہمارے ہیں جو لا رہے ہیں ان کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بیٹریاں ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی یوز کی, بیٹریوں کی پاور زیادہ یوز کی تاکہ رینج زیادہ ہو. اور ہم نے اس کی فنش آپ آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں آنے والی اس وقت کوئی بھی الیکٹرک سکوٹر ہو, الیکٹرک بائک ہو, وہ اس کی کوالٹی, فیچر, پاور, بیٹری کی رینج, وارنٹی پیریڈ اور اس کی فنش کے ساتھ مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی. اب الیکٹرک کا رجحان اس لیے بھی تیز ہوا ہے کہ دیکھیں اس وقت جتنا ایک موٹر سائیکل 1 لیٹر پیٹرول میں جتنے کلومیٹر چلتی ہے اتنا ہی کلومیٹر الیکٹرک سکوٹر 1 یونٹ میں چلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مائلیج 1 یونٹ بجلی کی اور 1 لیٹر پیٹرول کی یہ برابر ہے. یہ بھی تقریباً 50 کے قریب 1 یونٹ میں چلتی ہے, اور وہ بھی 50 کے قریب, بلکہ 1 to 5 وغیرہ ہو, 100 ہو تو وہ تو کم چلتی ہیں. لیکن جو 70 ہے اس کی ایوریج 50-52 کے قریب ہی رہتی ہے ایکچولی. تو یہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت بھی 350 روپے کا پیٹرول ہے, جبکہ یونٹ اس وقت بجلی کا کافی مہنگا ہوا ہے. جو پہلے 40 میں پڑتا تھا اب 70 روپے میں پڑ رہا ہے. شاید کسی جو زیادہ یونٹ جلاتا ہے اس کا ٹیرف شاید 75-80 پہ بھی جاتا ہو, لیکن اس کے باوجود اس کا اور اس کی کاسٹ کا 4 گنا 5 گنا کا فرق ہے. وہ زیادہ مہنگی پڑتا ہے پیٹرول. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف پیٹرول نہیں جلتا, آپ کو ایئر فلٹر کا بھی ایکسپینس کرنا پڑتا ہے. ہر 1000-1500 کلومیٹر بعد آپ ایئر فلٹر تبدیل کرواتے ہیں, ہر 1000-2000 کلومیٹر کے بعد آپ انجن آئل تبدیل کرتے ہیں. اس کا بھی جب آپ خرچ ڈالیں گے تو یہ خرچ جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کیے, یہ 6 سے 7 گنا بڑھ جاتا ہے. باقی میں نے اس لیے بات نہیں کی, موٹر سائیکل میں چین اور سپراکٹ ہوتی ہے, چین گراوی سیٹ ہے, ہر 10-15 ہزار کلومیٹر کے بعد آپ کو چینج کروانا پڑتا ہے. اس میں وہ کیونکہ ہب کے اندر ہی موٹر لگی ہوئی ہے, کوئی چین نہیں ہے, کوئی سپراکٹ نہیں ہے. پھر فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بڑا اچھے سے اچھا انجن بھی ہو تو سال بعد یا 1.5 سال بعد آپ کو اس کی اوور ہالنگ کرانی پڑے گی, اور اس پہ بھی ایک اچھی خاصی کاسٹ ہے. اور اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ نے بے شک سارے نئے جینین پارٹس بھی ڈلوا دینا کسی جاپانی کمپنی کے بھی, تو وہ آپ کو اس کی وارنٹی نہیں دیتی انجن کی. پیسے آپ سے لے گی, وہ آپ سے وہ پیسے لے گی جینین پارٹس کے, آپ ان کے وارنٹی سینٹر پہ جائیں چینج کروا لیں, آپ 20,000 بھی انجن پہ لگا دیں وارنٹی نہیں دیں گے. لیکن ہم اپنی گاڑی کی وارنٹی دیں گے کیسے؟ جب ہمارا الیکٹرک سکوٹر جو ہے اس کے اندر بیٹریوں کی لائف ہے 4 سال. 4 سال تک اس کی بیٹریاں جو ہیں وہ چلیں گی انشاءاللہ, اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو یہ 5 سال بھی چلیں گی. اگر احتیاط نہیں کریں گے تو 3 سال بھی چل سکتی ہیں, یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا 1000 چارجنگ سائیکل ہے کم از کم, 1,00,000 کلومیٹر تک یہ بیٹریاں چلتی ہیں. اور جب آپ آئیں گے ملک صاحب کے پاس, آپ کہیں گے 4 سال بعد یہ ہمیں بیٹریاں تبدیل کریں, جو آپ کی بیٹریاں نکلیں گی وہ آپ کی نئی بیٹریوں کی قیمت کا 20-25% آپ کو وہ ریٹرن ہو جائے گا. اور جو نئی بیٹریاں ڈلیں گی
उनकी आपको फिर 18 महीने नई वारंटी मिल जाएगी। जबकि इंजन वाली मोटरसाइकिल में आप पूरा इंजन भी हंडा की या टोयोटा वो हंडा हो, यामा हो, सुजुकी कोई भी हो, तब्दील करवा दें, उनके सारे पार्ट्स तब्दील कर दें, ओवर हालिंग में आपको वारंटी उनकी नहीं मिलेगी। तो ये एक इस चीज़ का ये भी फायदा है। तीसरी बात, घर की कोई बेटी, कोई बहन, कोई अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है तो स्कूटर उसके लिए भी फिजिबल है, जबकि मोटरसाइकिल जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए है। तो ये एक स्कूटर घर में हो तो घर का हर फर्द इसको चला सकता है, खा वो 12 साल का नौजवान हो या वो 80 साल का बुजुर्ग हो, वो मर्द हो या खातून हो। और 7 गुना कास्ट इसकी कम है पर किलोमीटर, और ये आपकी बाइक की कीमत 1 साल से 1.5 साल के अंदर पूरी कर दी। जितने की आपने बाइक ली वो सारी आपकी जितनी पेट्रोल की बचत है ना, उससे अगर कैलकुलेट करेंगे 1 से 1.5 साल में, ये बाइक समझिए कि आपको उतनी बचत दे गई है जितने की आपने खरीदी है। उसके को जो भी चलाएंगे वो आप समझ में आपका फ्री में चल रहा है। और बैटरियां जो है वो 4 साल तक आराम से चलेंगी। उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आप चार्जिंग पे लगा के 6 घंटे बाद उसको अनप्लग कर दें। अगर आप सो जाएंगे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ओवर चार्ज करते जाएंगे, फिर बैटरी डैमेज होने का चांस बढ़ता है। दूसरे फीचर्स के अंदर आप अपने मोबाइल से स्टार्ट करेंगे, मोबाइल की ऐप से बटन दबाएंगे, स्टार्ट होगा। उसको चोरी करेगा, GPS टेक्नोलॉजी से आप देखेंगे कहाँ पे पहुँचा है। आपका चोरी भी होगा, आपका बच्चा भी लेके गया है, आप अपने GPS से देख सकेंगे कि इस वक्त मोटरसाइकिल लेके बच्चा कहाँ घूम रहा है। ये इस तरह के हम ऐसे ऐसे फीचर लगाएंगे इंशाअल्लाह जो, और मोबाइल की चार्जिंग का फीचर होगा। बारिश आ जाए, अपने पैसों को, मोबाइल को कहाँ पे सेव करना है, वो एक ट्रंक होगा वाटर प्रूफ। और इस तरह की बेशुमार फीचर्स के साथ ये भी जो मॉडल हैं इनके अंदर तकरीबन ये काफ़ी सारे फीचर्स जो मैंने बताए ये मौजूद हैं। ये एंटी थेफ्ट सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, ये रिमोट से स्टार्ट होता है, कीलेस स्टार्ट है इसका, और इसका व्हील लॉकिंग सिस्टम है कि अगर आपने खड़ा किया कोई इसको चला के भी ले जाना चाहता तो व्हील इसके ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। और मुस्तकबिल में हम GPS टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से का शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ, और हम मलिक साहब के इस कारोबार में अल्लाह ताला तरक्की डाले, इनके हज़ार रिज़्क़ में, बल्कि हम सब के हज़ार रिज़्क़ में अल्लाह इतना इजाफ़ा फरमाए कि हम हराम को नज़र उठा के भी ना देखें। अल्लाह ताला अपनी जनाब से, अपने करम से, अपनी रहमत से इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकाले। इस वक्त गरीब आदमी बिजली के बिल और 2 वक्त की रोटी से भी तंग है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे, हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को भी हिदायत दे, हमारे सूद खोरों को भी हिदायत दे, और अल्लाह ताला इस मुल्क की आवाम पे रहम फरमाए और हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाए। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए दुआ करें। ये गरीब आदमी जो चीज़ें ख़रीदता है उससे हमारी दुकानें चलती हैं। ये गरीब आदमी अगर उसकी बाइंग पावर होगी, ज़िंदा होगा, तो ये पूरा मुआशरा चलेगा। जब गरीब आदमी का जीना दोबर हो जाए तो फिर जो अमीर समझता है कि मैं तो खुशहाल हूँ, वो भी बदहाल होकर ही रहता है। इसलिए ये कभी ना सोचें कि बस मेरी जेब में पैसे आ गए, किसी को लुट गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये अगर तबाही फैलेगी तो इसकी लपेट में सब आएंगे। अल्लाह का निज़ाम है कि खुशहाली, जब आप खैर खाई सोचेंगे दूसरों की तो अल्लाह ताला आपकी खैर खाई फरमाएंगे। और इस वक्त एक सबसे बड़ा जो मसला इस मुल्क के अंदर है वो सूद है। इस वक्त देखें मुल्क के अंदर 22% शरह सूद हुकूमत ने तय की है। दुनिया के 200 मुल्कों में सबसे ज़्यादा शरह सूद जो 5 मुल्कों की है उनमें पाकिस्तान, 195 मुल्क हमारे पीछे हैं। और ये सूद पता कितना है? इस साल बजट में खाई साहब बैठे हैं, मैं बताता चलूँ, इस साल बजट में 9,500 अरब रुपए आप टैक्स देंगे। ये हुकूमत ने जो वफाकी बजट पेश किया
कितना 9,500 अरब टैक्स देंगे आप एक साल में। ये कहाँ जाएगा? इसमें से 7,500 अरब आपका सूद की अदायगी पे खर्च होगा, आपकी हुकूमत सूद देगी। आपने फौरन ये सोचा होगा कि ज़ाहिर है हमने IMF से, वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, सऊदीया से, दुबई से, अबू धाबी से कर्जे लिए हैं, हमने सूद तो देना ही देना है। लेकिन आपको हैरत की बात बताऊं, इस 7,500 अरब में से 1,500 अरब सूद अपने गैर मुल्कों को देने हैं और 6,000 अरब हमने पाकिस्तान के 26 बैंकों के सूदखोर मालिकों को देने हैं। वो क्यों? कि जिनसे हमने बाहर से कर्जा लिया है उनकी शरह सूद है 1.75 यानी 2.25%, हालांकि वो काफर है। तो कितना है? 2.25%। और मियां मंशा जैसे और पाकिस्तान के ये जो बैंक बनाए बैठे सूदखोर बैठे हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ ये सब पार्टियां करती हैं, कभी इनको हथकड़ी रखते नहीं देखेंगे आप। इन्होंने उनको बचाने के लिए 22% शरह सूद तय की है ताकि हम लोगों का खून निचोड़ के टैक्स इकट्ठा करें और तुम 31 चोर इस मुल्क पे काबिज है। कोई टूटी नज़र आता है, कोई फलां नज़र आता है, कोई आपको ज़कात अशरफ नज़र आता है, कोई आपको जो है वो मलक रियाज नज़र आता है। ये वो गैंग 31 ख़ानदान, ये IMF ने कहा है। IMF कहता है कि इस मुल्क के वसाइल 80% 31 ख़ानदानों की जेबों में जाते हैं, जिसमें 11 ख़ानदान सियासतदान हैं। मैं नाम नहीं लेता, आपका किसी न किसी पार्टी से तल्लुक़ होगा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और बाकी जो 20 लोग हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, जो रियल एस्टेट, शुगर मिलें, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, बिजली बनाने के कारखाने, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस पे वो काबिज है। वो 100 रुपये का आपका खरीद बनता है चीनी, इस वक्त 90 रुपये की चीनी बन रही है। बिक कितने की रही है? 250 रुपये की, बल्कि दरमियान में 200 की भी बेची है इन्होंने, डबल रेट पे। और गन्ने के पैसे नहीं देते जिम्मेदार को। मेरे पास लोग आए 2014 के पैसे दिए हुए हैं, फलां हसीब, विकास मिल, फलां मिल, फलां मिल, आज तक पैसे नहीं मिले। लेकिन इनको कौन नहीं पकड़ता, क्योंकि आपको पता पीछे कौन है। ये बिजली बनाने वाले 2 मेगावाट का अगर पावर प्लांट लगाया है, हुकूमत 1 मेगावाट खरीद रही है, 1 में है इन हुक्मरानों की वजह से जो हमारे ऊपर 76 साल से मुसल्लत है। हालांकि सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ क्या है? जंग है। आप 76 साल से जंग कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं। जब हम वोट दे के उनको भेजते हैं, हमने उनको हथियार दिया है, जाओ अल्लाह और उसके नबी से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम उनके ढोल के ऊपर नाचते हैं, हम की फतह का जश्न मनाते हैं। इसीलिए ये अजाब है कि आज 2 वक्त की रोटी लोगों के पास नहीं है। अल्लाह से जंग करेंगे तो जहाँ भी जूते पड़ेंगे, आगे भी जूते पड़ेंगे। अल्लाह हमें तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस मुल्क पे, इस मुल्क की आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मलूज़े खातिर रखते हुए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे एक दोस्त अज़ीज़ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, तो उनसे कहेंगे कि आपसे कुछ ख़यालात का इजहार करें और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ओपनिंग सेरेमनी की तरफ चलेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बट साहब की शीर हासिल गुफ्तगू माशरत पर ख़ास तौर से जो उन्होंने रोशनी डाली, इसके बाद मेरे कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं करता मैं, और मैं अपना टाइम अपने कायद ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान अंजुमन ताजरान को दे रहा हूँ। ख्वाजा साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे भट्ट साहब, अजहर समदीला साहब, ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब, मियाँ ज़फ़र साहब,
कारी फैसल साहब, शेख असगर अकबल साहब, जुमला हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे लोग, अच्छे इदारे, अच्छी कौमें अच्छी रवायात को जन्म दिया करती हैं। इंसान को माश हो, माशरत हो, कोई भी मैदान हो, खूब से खूब तर की तलाश में रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन कौमों के लिए, उन लोगों के लिए जो ख़तरे गुर्बत के बहुत नीचे रह रहे हों, जिनको ज़िंदगी की सहूलियात बहुत कम मुयस्सर होती हैं या मुयस्सर नहीं होती, और सहूलियात हासिल करना उनके लिए जान जोखों का काम होता है। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मार्केटिंग करना। फ्यूल की प्राइसेस जितनी बढ़ चुकी हैं, अनबिलीवेबल, नामुमकिन हो चुका है, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है कि एक एवरेज आदमी के लिए, एवरेज तो क्या मतवसत तबके के फर्द के लिए भी, गाड़ी तो क्या मोटर बाइक में भी फ्यूल बर्दाश्त करना, फ्यूल की कास्ट बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल इंतहाई अबतर है। ज़रूरत वाकई है कि ऐसी मार्केटिंग हो, ऐसी ज़रूरियात की मार्केटिंग हो जो हमारा या हमारे लिए ज़िंदा रहना कदरे आसान हो। और आप देखिए, अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो 350 रुपये लीटर कॉस्ट है पेट्रोल की, और इसकी एक यूनिट की कॉस्ट 78 गालबन बताया गया है, ये इसके करीब ही है। तो कितनी इकोनॉमिक ड्राइव है, कितनी बचत है, कितनी सेविंग है कि हम अपनी ज़िंदगी को सहल बना सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ भट्ट साहब की इन एफर्ट्स को, और दुआ गो हूँ कि इन्होंने मुआशरती हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है वो हमारा तमाम कौम का, तमाम कौम नहीं तो खालिस्तान ताजरों का एक शार होना चाहिए, एक करीना सलीका होना चाहिए। हमें इस डायरेक्शन पे कारबंद रहना चाहिए। यकीनन मैं रात भी बात कर रहा था कि अल्लाह के हबीब का फरमान है कि एक सच्चा और दयानतदार ताजर जो है, आखिरत में उसे क्या मकाम मिलेगा। हम ताजर हैं तो हमें सोचना चाहिए। फरमाया कि अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा की सब में उठाया जाएगा। अरे सोचो तो सही ताजरों, कितने तबकात, कितने शोबे और हैं। किसी और के मुतल्लिक़ फरमाया गया, मेरे रब ने ये एजाज़ बख्शा, ताजरों आपको एजाज़ बख्शा है। अंबिया का मकाम, हमारा ईमान है कि वो ऐसी
जलीलुल कदर हस्तियां हैं दुनिया में जिनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, जिनको किसी तराजू में हमारी अहलियत नहीं है कि तोल सकें। इसी तरह सिद्दीकीन की अगर बात फरमाएं तो आक़ाए दो जहान है, नबी मोहतशम, साक़ी कौसर, शाफ़ माशर, सईदुल बशर, फ़ख्रुल रसूल ने फरमाया था कि मैंने दुनिया में जिन लोगों पे के मुझ पर एहसानात हैं मैंने बदला चुका दिया है। अगर नहीं चुका सका तो सिद्दीक़ अबू बकर का नहीं चुका सका। आगे आइए, शुहदा की बात। हमारा ईमान है कि शहीद का पहला कतरा खून ज़मीन पर गिरता है तो जन्नत वाजिब हो जाती है। कितना मर्तबा है, और इसी मर्तबे को, शहीद के मर्तबे को हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने अपने अंदाज में क्या खूब फरमाया था, इन शुहदा की दियत अहले कलीसा से न मांग, कद्र कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर, तो हरम पाक की तकदीर से बढ़कर शहीद का खून है, ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। और हम भी समझते हैं कि वो मर्द दरवेश, मर्द कलंदर हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। देखिए, बहुत सी बातें भट्ट साहब ने की, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, तफसील में नहीं जाना चाहता। एक गुजारिश करूँगा कि हम नबी रहमत से ग़ुलामी का दम भरते हैं। अगर ग़ुलामी में हम सच्चे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जो कारहाए नमाया, जो ज़र्री उसूल तजारत में उन्होंने हमें सिखाए थे, दिखाए थे, क्या हम उन पर कारबंद है? अगर हम अपने गिरबानों में झांकें तो बिल्कुल जवाब नबी में मिलता। मैं भी अपने गिरबान में देखूं तो जवाब नबी में मिलता। आइए हम एक अहद करें, एक कमिटमेंट करें। अरे इंसानों से वादा अगर पूरा नहीं कर सकते, करना चाहिए तो रब से किया हुआ वादा तो पूरा करें, अल्लाह के नबी से किया हुआ वादा तो पूरा करें। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ भट्ट साहब की खिदमत में, हमारा मुल्क एक एटॉमिक एनर्जी कहाँ में, क्या हमारे इंजीनियर सो गए हैं? क्या हमें एक आम आदमी की ज़रूरत का एहसास नहीं है? ये आप फरमा रहे थे कि ये मोटरसाइकिल हम असम्बल करते हैं, या उसका नट बोल्ट वगैरह उसको सही हालत में लाते, चलने के काबिल बनाते हैं, तो क्या हमारा इंजीनियर इतना बांझ हो चुका है? एटम बम तो बना सकता है, मोटरसाइकिल और कार नहीं बना सकता। यह चीज़ें बननी चाहिए। हुकूमतों की तरजीहात बदकिस्मती से ये नहीं, या तो अपना घर भरना है या किसी से सियासी इंतकाम लेना है। कतई इस बात की ज़रूरत नहीं है कि 25 करोड़ अवाम को भी हमने देखना है। ये रियासत एक माँ का दर्जा रखती है। क्या ये रियासत माँ के हकूक़ पूरी कर रही है? माँ तो अपने बच्चे को कांटे की चुभन बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तो एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर लोग मर रहे हैं। नौजवान जिसने ग्रेजुएशन की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, वो अपने बच्चे के लिए जॉबलेस होने की वजह से दूध खरीद के नहीं ला सकता, तो डकैती, चोरी, रहज़नी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? ये मुकद्दर है। जब तक हम राइट डायरेक्शन पे अपने आप को नहीं लाते। आखिर में मैं अगर संजीला साहब के लिए भी दुआ गो हूँ, मेरे बेटों की तरह है, उन्होंने ये कारोबार किया है, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आकाए नामदार हबीब किबरिया की सुन्नत पर अमल करते हुए कारोबार में
सदाकत का शार ना छोड़ें, सदाकत को मलूज़ खातर रखें। हमें कारोबार में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ हमेशा हिलाकत और बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। रिज़्क वही है जो मेरे रब ने आपके नसीब में लिख दिया, जो मेरे नसीब में लिख दिया, चाहे मैं हलाल ज़रिए से कमाऊँ या हराम ज़रिए से कमाऊँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसको कारोबार में कामयाबी अता फरमाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप एक नमूना बने तजारत में, ख़ास तौर पे अपनी ट्रेड में। एक सिंबॉलिक जेस्चर होना चाहिए आपका कि लोग देखें कि हमारे सामने अदर संदीला साहब ने कितने शॉर्ट स्पैन में कितनी तरक्की की है, और ये तरक्की आप यकीन जानें उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि अल्लाह और उसके हबीब की ताईद हासिल ना हो। शुक्रिया। मैं तमाम दोस्तों से इल्तमास करूँगा कि ओपनिंग के लिए, सेरेमनी के लिए आगे तशरीफ़ ले आएँ। अब जो है मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक की ओपनिंग सेरेमनी है, जिसमें हाजी असगर साहब, भट्ट साहब, मलिक अज़हर संदीला साहब, तो ये सभी भाई जो है वो इसकी ओपनिंग करेंगे। भाई साहब आगे आ जाओ। हाजी असगर अली कुरैशी साहब आगे आ जाओ। काटो जी काटो। मलिक अज़हर संदीला साहब आगे हाथ करो। आगे आ जाओ सब आगे आ जाओ। भट्ट साहब दी ग्रेट। बस ना भाई मैं ना सुटते भी मैं अगे 5-6 सूट में पत्तियां ना और ये सी दुआ कर दी कि गुरु खान दे। मलिक अज़हर साहब अंदर आ वञो। आगे आ जाओ जी सब। बस 2 मिनट दुआ करना है। आओ जी। ये इफ्तिताह है जी मोटर इलेक्ट्रिक बाइक मेट्रो। भाई इमरान हमदी साहब, माशाल्लाह जी, अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे। इफ्तिताह पे ख्वाजा साहब आए हुए हैं, भाई असगर अली कुरैशी साहब। चाचा पी रे सारा फंक्शन खराब कर देते पर मुँह करके। ख्वाजा साहब के लिए भी दुआ करनी है। आमीन। चाहिए सामान वो देख के भाई नदीम थोड़ा सा इधर करना। आमीन। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, आमीन। और भाई बस सारी तस्वीरें बना रही हैं ना। हाँ जी माशाल्लाह जी। मलिक हमजा के एक नए शोरूम का इफ्तिताह हो गया है। अल्लाह कामयाब करे जी, अल्लाह कामयाब करे जी। इन्होंने पेट्रोल से छुट्टी करवा दी। जितने भी मुल्तान के शहरी हैं वो ये बाइक्स देखें और पेट्रोल पंप पे आपने नहीं जाना। हाँ जी आ गया, सही आ गया। अल्लाह मलिक अज़हर को जी मज़ीद तरक्की दे। आया बाजे
ऑफिस में आ जाए। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो जी जितने भी इफ्तिताह पे आए हैं। अल्लाह मलिक अज़हर साहब के कारोबार में तरक्की दे। चाचा पीरे मलाई बना भाई ने तो मलाई करे तो खत्म हो देख वाले रात रात में भाई इनमें बैटरी है जी, पेट्रोल की छुट्टी हो गई। तस्वीरें VIP लियो भाई नदी में आया बेटा इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं फोन पे यूट्यूब चलाना ये उस चैनल के अंदर रहेगी। यहाँ की मुख्तलिफ मॉडल मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक के माशाल्लाह बड़े खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारे मॉडल है। ये अल जन्नत मोटर की मेट्रो इलेक्ट्रिक ब्रांच है बोसन रोड पे माशाल्लाह के सामने, माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने। ये इसके फीचर लिखे हुए हैं। ये मेरे साथ भाई वीडियो बना भाई भाईजान बड़ी मेहरबानी। आप भी अपने साथ लगाओ ना। ये भी माशाल्लाह मॉडल है जी, तो ये काफ़ी सारे इसके डिज़ाइन है। ये वो बाइक है जो आप इसे इलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो और बाइक साइकिल भी। तो ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं। आज माशाल्लाह काफ़ी गपशप भी हो गई और एक बड़ी अच्छी कंपनी की बाइक की ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई। तो अब इजाज़त चाहते हैं, आपने हमें हमारे यूट्यूब मारियाज ऑफिशियल को 12-14 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सलाम। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?